नमस्कार। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में ओवल ऑफिस में जो बातचीत थी वो तीखी बहस में बदल गई और ये हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा कभी दो हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में कैमरास के सामने कभी नहीं हुआ। इस सब की शुरुआत तब हुई जब वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने जेलेंस्की को अटैक करना शुरू किया कि यूक्रेन ग्रेटफुल नहीं है यूएस हेल्प के लिए, और ये करके वो अमेरिका को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 से यूक्रेन फ्लर्ट कर रहा है, फिर भी अपनी पोजीशन को फ्लेक्सिबल नहीं बना रहा। आइए इस क्लिप में सुनते हैं। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I. You have a damn we- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of except times that thank there, you except to that, American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. जेलेंस्की और ट्रंप की ये मुलाकात हुई थी एक रेयर अर्थ मिनरल डील साइन करने के लिए, जिसके तहत अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स में इन्वेस्ट करते और वहाँ से यूक्रेन के रीबिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है। पर अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेलेंस्की फिलहाल पीस के लिए तैयार नहीं है, और जब जेलेंस्की तैयार होंगे तब वो दोबारा बातचीत करेंगे। इस पूरे इंटरैक्शन में एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट को जजेस जिस तरह बेरेट करते हैं, उसी तरह यूक्रेन के प्रेसिडेंट को यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रीट किया है। People are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television. अब जेलेंस्की फंसे हुए हैं इम्प्रॉबेबल और इम्पॉसिबल डिमांड्स में, एक तरफ रशिया की तरफ से और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से। इस पूरे अगली स्पैट के बाद व्हाइट हाउस के स्टाफ ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने को कहा और सारी फ्यूचर मीटिंग्स और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप इस बार प्रेसिडेंट बनने के पहले से ही यूक्रेन और रशिया में पीस कराना चाहते थे, बट वो पीस सीज फायर के थ्रू लाना चाहते हैं। यूक्रेन को सिर्फ सीज फायर मंजूर नहीं, जैसा कि जेलेंस्की ने बताया भी कि सीज फायर तो पहले भी साइन हुए हैं, बट रशिया ने 25 मरतबा उस सीज फायर का उल्लंघन किया। तो वो कोई भी अग्रीमेंट या सीज फायर तभी साइन करने को तैयार हैं जब सिक्योरिटी गारंटी भी दी जाए कि इन केस रशिया उन सीज फायर का उल्लंघन करता है तो यूरोप, नाटो और अमेरिका कैसे यूक्रेन के बचाव के लिए आएगा। पर अब क्या होगा? यूक्रेन को जो यूएस एड मिल रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं, वो अगर यूएस रोक देगा
तो ये वॉर तो पुतिन ऐसे भी जीत जाएंगे, और अगर यूक्रेन रशियन टर्म्स में सरेंडर करता है तब भी पुतिन जीत जाएंगे। तो इस पूरी नई पुतिन और ट्रम्प के रोमांस का नतीजा ये है कि यूक्रेन एक लॉस सिचुएशन में पहुंच गया है। इसी हफ्ते यूके और फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट्स भी ट्रम्प से मिले। उन्होंने बहुत उन्हें फ्लैटर किया, बहुत तारीफ़ें की, इस उम्मीद में कि ट्रम्प को वो मना पाएंगे और एक्टिवली यूरोप में इन्वॉल्व होने के लिए। बट उन्हें क्या पता कि पुतिन कन्विंस कर रहे हैं ट्रम्प को कि आप नाटो ही छोड़ दो, यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का खर्चा अमेरिका क्यों उठाए। अब ये पूरी इंटरैक्शन इतनी कड़वी क्यों टर्न हो गई? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि ज़ेलेंस्की की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो कहना कुछ चाह रहे थे और एक्सप्रेस कुछ और कर गए, जिससे ट्रम्प और वैंस अर्क हो गए और रिएक्ट कर दिया? या फिर ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था ट्रम्प और वैंस का, अमेरिकन मीडिया और पब्लिक के सामने ये जताने के लिए कि हम कितने प्रो अमेरिका हैं? या फिर ज़ेलेंस्की अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ट्रम्प कितने मर्क्यूरियल इंसान है और उनका प्रेशर डालने का टेक्निक उन्हीं पर बैकफायर कर गया। ट्रम्प ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो उस वॉर को फंड करने के मूड में नहीं है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें ऑन द कार्ड्स तो थी, बट ये इस तरह प्ले आउट होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। खैर, इसका रिएक्शन आया, सपोर्ट फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, पोलैंड, जर्मनी, सब जगह के लीडर्स ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कहा कि तुम अकेले नहीं हो वॉर में और हम तुम्हारे साथ हैं। बट क्या ये एम्प्टी वर्ड्स बैटलफील्ड में हथियार और पैसों के सपोर्ट में ट्रांसलेट होंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हाथ खींच लेता है तो मुश्किल होगा यूरोप के लिए अकेले यूक्रेन को सपोर्ट करना। अब इस पूरे मामले को लेकर यूरोप में चिंता बढ़ गई है कि क्या ट्रम्प जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं? तो अगर वो कह रहे हैं कि वो नाटो में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या पता वो नाटो से हाथ खींच ले। इस पूरे मूव से रशिया बहुत खुश है। उनका तो बेस्ट डे सिंस द वॉर बिगैन कल ही हुआ, जहाँ पे पब्लिकली दोनों पार्टीज इतनी दूर चली गई कि अब बिना पब्लिक अपॉलॉजी के बात बनेगी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में टॉक्स रखने की बात तो कही है, जहां रशिया और यूएस मिलकर यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए डील साइन करेंगे। बट ये कैसी डील है जिसमें यूक्रेन खुद ही मौजूद नहीं होगा? तो यूक्रेन खुद अपनी बात रखने के लिए उस डील में मौजूद नहीं होगा। तो बेसिकली एक यूएस और रशिया के बीच में डील होगी जिसमें यूक्रेन को सिर्फ एक मोहरा बनाया जाएगा। चाइना भी इस पूरे मुद्दे को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि अगर यूक्रेन में यूएस इंटरेस्टेड नहीं है तो कल को ताइवान पर जब चाइना अटैक करेगा तो क्या पता तब भी यूएस इंटरेस्टेड ना हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंटली मेजर कर रहा है यूएस का रिस्पॉन्स, और उसी तरह एम्बोल्डन हो रहा है अपने इंटेंशंस में। रशिया को इस वॉर को शुरू करने के लिए 3 गोल्स रखे थे अपने सामने। एक तो कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करे, न्यूट्रल रहे। दूसरा कि कुछ टेरिटरीज वो यूक्रेन की हासिल कर ले। और तीसरा कि यूक्रेन को इतना वीक कर दिया जाए ताकि उसकी इकोनॉमी कमज़ोर हो जाए और रशिया का इन्फ्लुएंस उस पर बढ़े। अब आगे जो भी रास्ता लेंगे ये, रशिया के तीनों मोटिव्स तो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की मान जाते हैं इस डील पे तो इसको यूक्रेन का सरेंडर ही माना जाएगा, जहाँ पे जो टेरिटरीज कैप्चर कर लिए पुतिन ने वो पुतिन के पास रह जाएंगी। नाटो कभी यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा और कमज़ोर तो वो हो ही गया है। और अगर यूक्रेन अभी भी वॉर में कंटिन्यू करता है बिना यूएस सपोर्ट के तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो रशिया ये वॉर कंटिन्यू करेगा और भी टेरिटरीज कैप्चर करता जाएगा और यूक्रेन और कमज़ोर होता जाएगा। अब यहाँ से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि ज़ेलेंस्की लड़ते रहें बिना यूएस एड सपोर्ट के और यूरोपियन पावर्स उनको फुल्ली फंड करें और ये वॉर ऑफ अट्रिशन जारी रहे। दूसरा रास्ता ये है कि ज़ेलेंस्की पॉपुलर सपोर्ट यूक्रेन में लूज़ कर जाएं और कोई और लीडर आए जो प्रो रशिया हो और ट्रम्प की बातें मान जाए और यूक्रेन का सूडो सरेंडर हो और रशिया पे सारे सैंक्शंस हटा दिए जाए, रशिया को मेन स्ट्रीम कर लिया जाए और ट्रम्प को एक पीस मेकर अनाउंस करके इस वॉर को अंत करने वाले के रूप में हिस्ट्री में याद किया जाए। और तीसरा रास्ता है कि ज़ेलेंस्की खुद ही ये मान जाए ट्रम्प के टर्म्स को और चुपचाप से रशिया और यूएस की बातें मानकर ये वॉर को ख़त्म करें। तो अब देखने वाली बात है कि ये सब आगे कैसे डेवलप होता है। बट यूएस जिसने पिछले 3 सालों में यूक्रेन को इस वॉर में लड़ने के लिए $350 बिलियन का सपोर्ट दिया, अचानक से वो इस तरह यू टर्न ले लेगा, ये कभी यूक्रेन ने नहीं सोचा होगा। एक इलेक्शन और पूरे देश की किस्मत इस तरह बदल जाएगी, ये भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। खैर, इस पूरे मामले में
सबसे खुश पार्टी रशिया है, क्योंकि इकोनॉमिकली उनका सैंक्शंस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए पिछले 3 सालों में। वो 4% से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, जबकि G7 1.7% पर ही ग्रो किया है। उनके फ्रेंडशिप्स ईस्टर्न वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री भी और मजबूत हो गई, और अब दुनिया उनको मेन स्ट्रीम में वापस लेने को भी तैयार है। यूक्रेन पे के संदर्भ में उनके तीनों गोल्स पूरे हो चुके हैं और यूरोप में अब रशियन मिलिट्री का डर भी बैठ गया है। खैर, ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, उन्होंने हमें ऐसे मोमेंट्स दिए जहां हेड ऑफ स्टेट्स ऐसे लड़ रहे हों जैसे कि कोई रियलिटी शो हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें याद रखना चाहिए कि मोदी जी ऐसे ट्रम्प के बिहेवियर से बचकर आ गए। ये बताता है कि इंडिया का ट्रिप कितना सक्सेसफुल रहा। खैर, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडिया।